غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کو گھر لانے کا وقت آ گیا۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستیں ہیں۔ 2 ریاستی حل کے بعد ہی اسرائیلی اور فلسطینی امن سے رہ سکیں گے۔ مغربی کنارے میں بے گناہ فلسطینیوں پر تشدد روکنا ہوگا۔ لبنان میں بڑے پیمانے پر جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے لیکن سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ یوکرین میں پیوٹن کی جنگ ناکام ہو چکی ہے۔ یقینی بنائیں گے ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ دنیا کو سوڈان میں جنگی سرداروں کو اسلحہ دینا بند کرنا ہوگا۔ فلسطین کی صورتحال عالمی برادری کے منہ پر تماچا ہے۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصے دار ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے UN جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیل کے حمایتیوں کو آئینہ دکھا دیا۔ خطاب میں کہا اسرائیلی بمباری سے غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا۔ صہیونی حکومت کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اجلاس سے خطاب میں UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا غزہ ایک نہ ختم ہونے والا ڈراونا خواب بن چکا ہے۔ لبنان بھی جنگ کے دہانے پر ہے۔ ایک اور غزہ بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عالمی طاقتوں کو حاصل سیاسی استثنا ناقابل برداشت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک۔ وزیراعظم کے ساتھ وفاقی وزراء اور پاکستانی مستقل مندوب بھی موجود ہیں۔ شہباز شریف 27 ستمبر کو UN جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی اور یورپین کمیشن کے صدور سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ صدر عالمی بینک، MD IMF اور بل گیٹس سے بھی ملیں گے۔ دوست ممالک کے سربراہان اور فلسطینی صدر محمود عباس سے خصوصی ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف برونائی دارالاسلام کے سلطان کے زہرانی اور چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر محمد یونس کے عشائیہ میں شرکت کریں گے۔ آئینی عدالت بنا کر رہیں گے، بلاول بھٹو کا اعلان۔ آئینی عدالت مجبوری اور ضروری ہے تاکہ پھر کسی دوسرے وزیر اعظم کو پھانسی نہ دی جا سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ کہا عدالتی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ ماضی میں آئین کو آنکھ کی لرزش سے اڑا دیا جاتا تھا۔ معزز ججز نے عامروں کو آئین میں ترامیم کرنے کی اجازت دی۔ 19ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لانا پڑی۔ اب کچھ بھی ہو عدالتی اصلاحات لا کر رہیں گے۔ قانون سازی عدالت کے تحت نہیں ہو سکتی۔ 15% سیاسی مقدمات میں 90% وقت لیا جاتا ہے۔ شہریوں کو فوری انصاف کے لیے وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے۔ وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کے نمائندے ہوں گے۔ ہر صوبے سے باری باری چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا۔ No, in انگریزی I'm not talking about any میں انگریزی میں ایک کہاوت ہے if you give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now توبہ جو memes بنیں گے یہاں سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انگریزی محاورے کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے گڑبڑا گئے۔ بلاول کو غلطی کا احساس ہوا تو ان کی اپنی ہنسی بھی نکل گئی۔ بار روم میں ہر طرف قہقہے بکھر گئے۔ بلاول بھٹو بولے دیکھنا اب اس جملے کی کتنی میمز بنیں گی۔ سابق ڈپٹی اسپیکر نے حکم امتناع لے کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ اب شاید وہ ڈپٹی اسپیکر انڈر گراؤنڈ ہو چکے۔ تنازعات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اداروں پر حملہ کر دیں۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ PTI وکیل حامد خان کا چیف جسٹس پاکستان پر اعتراض مسترد۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 5 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں۔ ایک ہی درخواست پر سماعت کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن کوئی آئین کی کتاب پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ کیا آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس کے دوران سماعت سوال۔
वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इदारों के दरमियान पहले ही तनाज़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रिब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इख्तियार चीफ जस्टिस से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की ट्रिब्यूनल्स की तश्कील में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल्स में शामिल करना दुरुस्त तरीका नहीं। हाईकोर्ट की मुशावरत से जो नामाए हैं उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। तनाज़ात निपटाने का मुतबादिल तरीक़ेकार बेहतरीन निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया ज़ेर इल्तिवा 24 लाख मुकदमात निपटा सकती है। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हर रोज़ बढ़ रहे हैं और जजेस की तादाद सिर्फ 4000 है। सालिसी का निज़ाम कोई रॉकेट साइंस नहीं। बढ़ती कानूनी चाराजोई से निपटने के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जजेस को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित अहम ज़रूर, लेकिन जजेस को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई उन्हें जानिबदार कहे। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना पार्टी को उड़ाने की कोशिश थी, अब सब बेनकाब हो चुका। सारे पर्दे हट चुके हैं। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है। अदलिया की आज़ादी के हक में जुमेरात को एहतजाज करेंगे। हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन कल एक बार फिर मुशावरत करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मामला भी ज़ेर गौर है। तमाम कानूनी निकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर समाअत। 3 पीटीआई उम्मीदवारों की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, माजी में रिटायर्ड जजेस ही ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा होते थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल शुरू से ही रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होने चाहिए थे। वकील शोएब शाहीन ने दलाइल में कहा, माय लॉर्ड, तब नीयतें साफ होती थीं। वकील अली बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज पर तासुब का इल्ज़ाम लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या हाई कोर्ट के जज पर तासुब का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता? शोएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा होता तो बात ही क्या थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करा दिया जाए और उसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात पर अमल दरामद भी रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पटिशन काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। सिपा सालार को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज लेवीज बिलखुसूस KPK पुलिस को उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फ्राहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के अज़्म पर जोर। सिपा सालार ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर एक और पर्चा कट गया। लाहौर के थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल। FIR के मुताबिक सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन असलहे से लैस
जत्थे की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के कहने पर गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। मुश्ताइल अफराद ने 2 पुलिस एहलकारों को भी जख्मी किया। अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा बलवा करते हुए आगे निकल गए। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। लाहौर और रावलपिंडी में जलसों पार्टी मामलात पर मुशावरत की गई। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बता दिया, कहा पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। उधर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर जलसे से हमाद अजहर को भगाने में मुआवनत और पुलिस की वर्दी फाड़ने का इल्जाम। लाहौर के थाना काहना में शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 30 से 40 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। सेशन कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक आलिया हमजा को गिरफ्तार करने से रोकते हुए अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई का मुल्क के बड़े शहरों में जलसे करने का फैसला। रावलपिंडी के बाद मियांवाली, कराची और कोयटा में सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में दोबारा जलसा करने के लिए भी तैयार। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए नई दरखास्त दे दी। दरखास्त के मतन में कहा गया है कि 5 अक्टूबर बानी पीटीआई की सालगिरह का दिन है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में सालगिरह तकरीब और जलसे की इजाज़त दी जाए। जलसे के शुरका तमाम कानूनी ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल करेंगे। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामिया पॉलिसी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। पंजाब भर में वर्किंग विमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया गया। एंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी भी दे दी। बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध की चीन के 75वें कौमी दिन पर चीनी काउंसलेट आमद। मुराद अली शाह ने कौमी दिन के मौके पर चीन की अवाम को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा पाक चीन ताल्लुकात पायदार तरक्की की जानिब गामज़न है। तवानाई के जदीद ज़राए, डिजिटल कनेक्टिविटी और सनतकारी के शोबों में मिलकर काम करते रहेंगे। चीन दीगर ममालिक के लिए भी रोल मॉडल का किरदार अदा कर रहा है। इजराइल ने लेबनान पर 2000 किलो बारूद बरसा दिया। दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। 50 बच्चों समेत 558 अफराद शहीद, 1835 जख्मी हो गए। बैरूत पर इजरायली फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर इब्राहिम क़ब्बासी शहीद। इजरायली फोर्सेस ने लेबनान में 1,500 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। शहरी आबादी पर ताकतवर बम गिराए। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइलों का बैराज फायर कर दिया। व्हाइट हाउस ने अमरीकी शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर कशीदगी में कमी का मुतालबा कर दिया। ईरान इसराइल के साथ जंग नहीं चाहता। इसराइल हमें जंग में घसीटने के लिए उकसा रहा है। हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ तन्हा खड़ा नहीं रह सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है इसराइल को अमेरिका और मगरिब की हिमायत हासिल है। आलमी बरादरी लबनान को एक और गजा बनने की इजाज़त ना दे। पाकिस्तान की असजद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। मंगोलिया में जारी चैंपियनशिप में असजद इकबाल ने सेमीफाइनल में भारत के मलकीत सिंह को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेस्ट ऑफ 11 में इंडियन हरीफ को एक फ्रेम भी ना जीतने दिया।